چاہتی ہیں, یہی کہتی ہیں کہ یہ چیز نقصان ہے. میرے کو تھی چھالیہ کی عادت, یہ بات حقیقت ہے, لیکن ابھی میں نے پہلے سے وہ بڑی ہو کے وہ بڑی ہیں جیسے ہمیں سمجھاتی ہیں, تو میں نے ان کی باتوں پہ عمل کیا, اور میں یہی کوشش کروں گی کہ میں چھوڑ دوں بالکل. اور سگریٹ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جو پیتی ہیں وہ نہیں پئیں. میرے سامنے ابھی تک کسی نے پی نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گی کہ وہ لوگ چھوڑ دیں. اور باجی ہماری بہت اچھی ہیں, یہ ہمیں اچھے کے لیے سمجھاتی ہیں کہ یہ چیز نقصان ہے, اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے, چاہے وہ چھالیہ ہو, چاہے سگریٹ ہو, چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی نشہ ہو. چھالیہ بھی ایک نشہ ہی ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم بولتے نہیں 2 دانے چھالیہ مل جائے ہم کھا لیں, تو میں کھاتی ہوں چھالیہ, عادت تھی, بہت تھی, لیکن ابھی کچھ وقت نے, کچھ حالات نے مجبور کر دیا, اس لیے چھوڑ دی چھالیہ. تھینک یو. بہت شکریہ نازیہ. اچھا, اب ہمارے درمیان موجود ہے ڈاکٹر جاوید جو کہ چیئرمین ہے NATCA کے, اور ڈاکٹر نادیہ بھی تشریف لائی ہیں آغا خان سے. اور جیسے کہ میری بات ہوئی تھی شیبہ سے, ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں لیڈی ڈاکٹر آئے تو ذرا بہتر ہوگا, خواتین زیادہ آسانی سے بات کو سمجھ سکیں گی. تو میں ریکویسٹ کروں گی نادیہ شریف سے کہ وہ آئیں اور اویئرنیس پہ سیشن دیں. تھینک یو نادیہ. احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے. اسی طرح صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس صحت نہیں رہتی. تمباکو نوشی چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو, چاہے تمباکو گٹکے چھالیے کی شکل میں ہو, یہ بہت ساری امراض کا سبب بنتی ہے, جس میں دل کے شریانوں کا بند ہو جانا جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ دماغ کی شریان اگر بند ہو جائے تو فالج کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ دائمی کھانسی, جسے ہم اپنی زبان میں کرونک برونکائٹس کہتے ہیں, یہ اس کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے کینسر کی بھی جڑ ہے, جس میں منہ کا کینسر, حلق کا کینسر, کھانے کی نالی کا کینسر اور پھیپھڑے کا کینسر. یہ سب کینسر جو ہے یہ تمباکو نوشی کی وجہ سے جو ہے ہو سکتے ہیں. اور تمباکو نوشی کرنے والا, چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو چاہے تمباکو کی شکل میں ہو, اوسطاً 14 سے 15 سال اپنی زندگی کے کم کر دیتا ہے. اور صرف تمباکو نوشی صرف آپ کے اپنے لیے نہیں بلکہ آس پاس جو آپ کے جو لوگ ہیں, جو آپ کے دھوئیں کی وجہ سے, آپ کے سگریٹ کے دھوؤں کی وجہ سے, وہ بھی اسی طرح سے اثر انداز ان پہ ہوتا ہے جس طرح آپ پہ ہوتا ہے. تو یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے آس پاس والوں کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے. اور جیسے کہ ابھی یہ میں نے بتایا کہ کینسر کا سبب ہے, تو یہ صرف حلق کان گلے کا کینسر ہی نہیں, رحم کا کینسر اور دوسری بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ یہ لبلبے کے کینسر کی بھی وجہ ہو سکتا ہے. تو تمباکو نوشی جو ہے وہ کسی بھی شکل میں, چاہے وہ سگریٹ ہو چاہے چھالیے گٹکے کی شکل میں ہو, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ آپ کی زندگی. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر جاوید کو بلاؤں اور یہ کہوں کہ بہت ساری خواتین کے منہ نظر آ رہے ہیں, چھالیاں کھا رہی ہیں مزے سے, واہ بھائی واہ, بہت کمال ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس عادت کو چھوڑ جو چکی ہیں اور جو چھوڑنا چاہتی ہیں اس کے لیے کیا اقدام کریں. اس سے پہلے میں شیبہ شاہ سے ریکویسٹ کروں گی تو آئیں اور آ کے بتائیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں, اپنی جو خواتین ہیں ان کے, کہ وہ کیا چاہیں گی. پلیز شیبہ شاہ آئیے. تھینک یو. یہ کہ لیڈیز انمیٹس ہماری جیل کی, اور اسپیشلی سارے یہ آنریبل گیسٹ اینڈ اسپیشلی فرزانہ آپا, جو یہ کہ آج اس لیکچر کا یہ کہ ہے ٹبیکو اور ہیلتھ, یہ کہ میں بھی اس فیور میں ہوں کہ ساری لیڈیز آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کہ ایک پرومس میں آپ کے سامنے ہی ان سے کرواتی ہوں اور لیتی ہوں کہ آج سے چھالیہ گٹکا تو ایسے یہ کہ جیل میں یہ کہ بند ہے, چھالیہ البتہ یہ کہ سونف والی ہم لوگ الاؤ کرتے ہیں, وہ بھی آن ویری اسپیشل ریکویسٹ فار انمیٹ. بٹ یہ کہ جو آپ نے یہ کہ ڈرا بیکس بتائے ہیں, میں بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں. سگریٹ اگر یہ کہ آج
अभी से कंडेम करना है तो मुझे बताएं कि मैं ऑर्डर अभी से ये पास करूँ कि सिगरेट बिल्कुल ये कि अंदर खवातीन जेल में एक भी नहीं आए। और वो डॉक्टर साहब से ये कि मैं पूछूं कि ये जो हैबिचुअल है इनका ये कि इस तरह ये कि रोकना इनकी सेहत के लिए क्या सही है, या ये कि हमें वो तरीके बताएं कि स्लो एंड ग्रेजुअली हम लोग इसको ये कि कंडेम करें। और क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, अगर अच्छी चीज़ होती तो मैं भी ये कि अपने स्टाफ को बोलती कि ये किसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं खुद ये कि ख़वातीन को ये कि बोलती हूँ कि जी आप जितने पैसे सिगरेट पर स्पेंड करती हैं आप उससे ये कि अच्छे ये कि फ्रूट अगर लें, एप्पल लें या और कोई आपका ये कि फेवरेट फ्रूट हो तो उससे ये कि बेहतर नतीजे जाएंगे। तो बीइंग ये है कि आज के सेशन के हवाले से मैं लेडीज से प्रॉमिस करती हूँ और ये कि ये मेरे से करेंगी कि नो स्मोकिंग आज के बाद ये कि कोई भी नहीं हुआ। बस ये कि डॉक्टर जावेद जो अभी ये कि लेक्चर डिलीवर करना जा रहे हैं तो वो हमें बताएं कि ये कि एकदम हम लोग अगर स्टॉप करें या ये कि ग्रेजुअली वो तरीके बताएं। थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली फरजाना आपा का और अफवा की सारी ये कि लेडीज का गेस्ट का कि जो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और टोबैको के ये कि 2-3 और सेशंस ये कि हम लोग इस मंथ के करवाना चाह रहे हैं। होपफुली इस महीने के आखिर में कोई भी सिगरेट एंड ये कि छालियाँ यहाँ पर अंदर नहीं जाएंगी। तो ये कि मैं इनमेट से ये कि पूछ रही हूँ कि कितने इसमें फेवर में वो हाथ खड़ा करें तो आपके सामने ये कि आ जाएगा। ये तो कम है बट ये कि 10-12 दिन में ये कि बिल्कुल खत्म करने का प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शीबा। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर जावेद से कि वो आएँ और इन खवातीन को बताएं कि अपनी ये जो तंबाकू नोशी के खिलाफ हमने जहाज शुरू किया है किस तरीके से इस पे काबू पा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अप्पा का और फाइजर का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे ये सेशन मुनक्किद किया। देखिए बात यह है कि अभी मैं आपको वाक़या बताऊँ, एक साल पहले का वाक़या है। मैं उसी वक्त आई थिंक लंदन से मैं आया था, फ्लाइट पहुँची तो मैंने देखा कि घर के बाहर मेरी एक पड़ोसन जो है, एक डॉक्टर, खुद एक लेडी डॉक्टर है, वो खड़ी हुई सुबह 6:30 बजे। मैं हैरान की 6:30 बजे क्या है मैडम इस तरह से खड़ी हैं। तो उन्होंने वाइफ को फ़ोन किया था कि डॉक्टर साहब कितने बजे पहुंचेंगे, तो उन्होंने बताया था 6:30 बजे तक को एक्सपेक्टेड है। तो जब मैं उनसे पूछा मैंने उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा जी देखिए बात यह है कि मेरे जवान भाई है, उसकी उम्र 30 साल है, उसको मुंह का कैंसर हो गया है। डॉक्टर साहब मुझे अर्ली आगा खान में आप अपॉइंटमेंट दिला दें। मैं 31 मई के बाद 31 मई वाली रात के बाद आपने कोई तंबाकू इस्तेमाल नहीं करना, कोई छालियाँ इस्तेमाल नहीं करनी। तो वक्ती तौर पे जो तकलीफ होगी ये टेम्परेरी होगी, चंद हफ्तों की होगी तकलीफ। हमारे पास कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि हम मरीजों को देते हैं इन विड्रॉल सिम्पटम को कम करने के लिए। लेकिन अगर आपकी विल पावर अच्छी है, अगर आप सेहत हासिल करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये आपके अपने हाथ में। ये स्लो सुसाइड है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मोइन अख्तर की मैं एग्जाम्पल बताऊँ, इसलिए बताता हूँ आप सब लोग जानते होंगे मोइन अख्तर को। इतनी पावरफुल एडिक्शन है। मोइन अख्तर अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, लेकिन उनका अब से 4 साल पहले हार्ट हुआ उनको, तो फौरन डर के मारे छोड़ी। लेकिन बाईपास उनका हुआ, बाईपास ऑपरेशन आपको पता कितना तकलीफ से होता है। तो ऑपरेशन के बाद फिर उन्होंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी और फिर अभी पिछले साल उनकी जो है डेथ हुई। तो बात यह है कि इतना पावरफुल एडिक्शन है, लोग जो है रियलाइज नहीं करते कि ये इंसान सिगरेट नहीं पीता बल्कि सिगरेट इंसान को पी रही होती है। तो एक खुदकशी है, एक स्लो सुसाइड है। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, आप हिसाब लगा लें कि खानों की कमी है, क्या फल की कमी है, क्या अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि उन नेमतों को हम जो है वो यूज़ करें। और तंबाकू, गुटखा, छालिया, पान मसाला, मैनपुरी, इसके बगैर भी एक बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी जा सकती है और सेहत वाली जिंदगी गुजार सकती है। हमारे मुल्क में हर साल 200 मिलियन रुपए जो है सिर्फ सिगरेट जला के हम जाया कर देते हैं और 120 करोड़ डेली हम पान, छालिया, गुटखा की मद में जाया करते हैं। और फिर हम गरीब मुल्क और फिर वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जे लेते हैं कि हमें कर्जा चाहिए। तो तंबाकू का इस्तेमाल या छालिया का इस्तेमाल किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आपकी अभी
थरपारकर के अंदर आफा यूनिवर्सिटी रिसर्च की थी, हमने वहां जाके देखा कि छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, पान की दुकान, गुटखे की दुकान, छालिया की दुकान रात के 12-1 बजे तक खुली है, बाकी तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं, ये खुली हैं। और हमने देखा छोटे छोटे बच्चे, तो वहां भी हमने जो घरों में सर्वे किया तो देखा कि जनाब 25% जो रकम है घर की वो तंबाकू, छालिया, गुटके, सिगरेट इसकी नजर हो रही है। वो 25% रकम वो यूज हो सकती थी दूध खरीदने में, फल खरीदने में, बच्चों की एजुकेशन के अंदर। तो यह है कि तंबाकू का इस्तेमाल जो है वो किसी लिहाज से आपके घर के बजट के ऊपर भी ये नुकसान होता है और फिर मुल्क की इकॉनमी के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो आखिर में सिर्फ ये मैं आप सब लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो है सेहत की दौलत दे, आप सब लोगों को अल्लाह ताला नेक काम करने की सलाहियत दे, और अफवा और फाइजर जो भी ये नेक काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें इनकी मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं हमारी आने वाली नस्ल जो है वो आप लोगों को क्या मैसेज देती है और क्या बताना चाहती है। और ये मैसेज दे रहे हैं हमारे अफ़वा के आयशा सिद्दीका स्कूल के बच्चे। और मैं दावत दूंगी अफशा जो उनकी टीचर है वो यहाँ आएँ और अपनी कहानी बयान करें। और ये स्कूल जो है ये साजिद सुमरो के सुपरविजन में तकरीबन मेरे ख्याल पिछले 26 साल से चल रहा है। अफशा तशरीफ लाइए। और मैं उनकी प्रिंसिपल मुनव्वर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आई हैं तो पेरेंट्स ने बच्चों को उनके साथ आने दिया। अफशा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ अफ़वा आयशा सिद्दीका स्कूल से है और हम यहाँ फाइजर और अफ़वा के ताउन से आपके सामने हाजिर हैं। हमारे बच्चों की एक छोटी कोशिश बहुत इफेक्टिव, शायद वो आपकी तालियां उसको बताएंगी। इसमें हमने आप ही जैसी औरतों का एक किरदार लिया है जो कि जनता के नाम से है और वो अपने घर के मसाइल को हल कर रही है, लड़ रही है। उसके घर के तमाम लोग तंबाकू का बेतहाशा इस्तेमाल करके बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन वो अपने घर के लोगों को भी बचा रही है, बच्चों को भी बचा रही है। ठीक है, तो लेकिन हम आपसे ताउन के तलबगार हैं और ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा तालियों में आप हमारे बच्चों को वेलकम कीजिए प्लीज़। किसी का जरा बोलना